Hello friends, welcome to my channel Easy Biology, and we were doing sexual reproduction in flowering plants. The topic we have done so far is till pollination. In our last class we have completed the types of pollination, advantages and disadvantages of self and cross pollination, and today our next topic is outbreeding devices. Since we have discussed in our last class कि जो self pollination है, there are more disadvantages of self pollination as comparative to cross pollination. That's why जो flowers हैं. So first of all we will discuss about today's topic, outbreeding devices. What does it mean? Let's discuss outbreeding devices. First of all बच्चे, you have to know that कि सेल्फ पॉलीनेशन ਦੀ बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं. वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ਕੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਰੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸ਼ੈਲ ਉਹ ਰੀਗਰੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸ਼ੈਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ more adapted for cross pollination. Why plants have been more adapted to cross pollinate? Since there are the disadvantages of self pollination. और ज़्यादातर self pollination होंदी क्यों है? The major reason of self pollination is self pollination ज़्यादातर होंदी क्यों सी plants दे विच? Since most of plants ਜਿਹੜੇ हैं they are hermaphrodites. hermaphrodite ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? This means both male and female part. Both male and female part lie in the same flower. ਸੇਮ ਫਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਅਗਰ ਮੇਲ ਫਲਾਰ, ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਲਾਰ, we have done the diagram so far, and this is the stigma in the center, stigma, style and ovary, and here are the anthers present. hermaphrodite, I am talking about the hermaphrodite flower plant. जो एंथर है ਉਹਦੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੋਲਨਸ ਅਗਰ ਸ਼ੈਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਸਟਿਗਮਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਟਕ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਟਾਈਲ 'ਚੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਓਵਰੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ. ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਡਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਓਵਰ ਔਰ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੈਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ. ਬਟ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਨ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੀਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈਲਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ. ਮੋਰ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੀਡ ਜਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੀਡਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਨਾਓ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਡੈਪਟਡ ਫॉर क्रॉस पॉलीनेशन. प्लांट्स ने खुद ही इनू रिजेक्ट करता. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर रिजेक्टिंग टू सेल्फ पॉलीनेशन. और किस तरह रिजेक्ट किया, किस तरह नालों मूव किए टुवर्ड्स द क्रॉस पॉलीनेशन, दैट इज कॉल्ड एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. they have some developed some devices, plants have developed some devices, kind of devices कि जिस दी वजह नाल क्रॉस पॉलीनेशन is more promoted and self pollination is ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ hermaphrodites. hermaphrodite means male and both male and female parts are present in the same flower. This is called as, for this automatically pollination ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ. this kind of is called as inbreeding depression.
sometimes this can be asked to you कि what is inbreeding depression. When as we know, most of the plants are hermaphrodite plants, and there is self pollination happening by the natural way, that is called as the inbreeding depression. And just to overcome this inbreeding depression, plants are more adapting towards the cross pollination by the way of plants are adapting towards the cross pollination, and this process is called as outbreeding devices. Now let's we discuss about the various devices by which plants are adapting towards cross pollination. How they are adapting the cross pollination, let's discuss about those things. First one is, there are some cases, let's discuss one by one. In some cases, pollen grains रिलीज हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स तो रिलीज हो गए, बट स्टिग्मा डज नॉट रिसीव them, स्टिग्मा ਉਹਨੂੰ रिसीव ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ डिनाई कर ਦਿੰਦਾ ਹੈ by some way. अदर केस 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, pollen grains are released too early than the maturity of stigma. Stigma mature नहीं होया, pollen grains, then the maturity of stigma mature नहीं होया, pollen grains release हो गए हैं, तो अल्टीमेटली उन्होंने ਦਾ लॉस ही होएगा. सिंस जिदे तक उन्होंने जाना है स्टिग्मा ਨੂੰ अप्रोच करना, स्टिग्मा इज़ नॉट रेडी, स्टिग्मा इज़ नॉट मैच्योरिंग, इज़ नॉट कमिंग अप टू द दैट पॉइंट कि वो पोलन ग्रेन्स ਨੂੰ रिसीव कर सके, तो दिस काइंड ऑफ डिप्रैशन भी वो क्रिएट कर लेंगे हैं. थर्ड वन इज़ स्टिग्मा मैच्योर्स टू अर्ली. स्टिग्मा बहुत अर्ली मैच्योर हो जाता है एज कंपेयर टू पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स तो अजे रिलीज़ ही नहीं होए, डिवेलप ही नहीं होए, वो मिड ऑफ द वे ही अपनी जर्नी च फिर रहे हैं, एंड स्टिग्मा हैज़ बीन मैच्योर्ड. दैन देयर इज़ अ वाइस वर्सा. अगर स्टिग्मा भी अर्ली मैच्योर हो गया, दैन वट इज़ द जो इफेक्ट की होएगा, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, पोलन ग्रेन्स ही ਉਹਦੀ अल्टीमेट जर्नी है, पोलन ग्रेन्स ਨੂੰ अप्रोच करना. आफ्टर दैट द रैसट ऑफ द प्रोसैस विल हैपन. जो पोलन ग्रेन्स ही रिलीज़ नहीं होए, मैच्योर नहीं होए, डिवेलप नहीं होए, दैन स्टिग्मा मैच्योर होकर की करेगा, दैन बोथ विल गो इन वेन. एंड इन सम केसिस की होंदा है इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ देयर पोजिशंस. इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ देयर पोजिशंस. किन्ना दी पोजिशंस? स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन्स दी. किन्ना दी? स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन. हुण देखो पोलन ग्रेन्स कित्थे होणगे, ऑबवियस जी गल है, मेल पार्ट ते, मेल फ्लावर ते, एंथर ते, एंड स्टिग्मा विल बी ऑन इन फीमेल पार्ट. इफ देयर इज़ इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ देयर पोजिशन, अगर उन्होंने पोजिशन ही इतनी फार अवे है, इतनी दूर दूर है कि रिलाय ही नहीं करदियां, नियर बाय ही नहीं है, दैन ऑबवियस जी गल है कि उन्होंने विच सैल्फ पॉलीनेशन हो ही नहीं पानी. और एक दूसरे तो इन्नी ज़्यादा दूरी मेनटेन कर ली हुई उन्होंने कि ना तो पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा ਨੂੰ अप्रोच कर सकता, और ना ही स्टिग्मा ने तो खैर किधरे जाना ही नहीं, जर्नी तो पोलन ग्रेन की ही होनी है, मूव तो उन्होंने ही करना पैना, स्टिग्मा तक तो उन्होंने अप्रोच करना पैना. दैन सम केसिस दे विच ऐदा हुंदा कि उन्होंने पोजिशन ही कंपैटिबल नहीं होंदी. इन अदर केसिस सैल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. इनकम्पैटिबिलिटी, सैल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या चीज़ है बच्चे? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਉਹ ਦੇ ਬੋਥ ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ डिनाई कर देंगे हैं अप्रोच करने लिए. सैल्फ इनकम्पैटिबिलिटी फॉर एग्जाम्पल पोलन ट्यूब जी है वो ग्रो ही नहीं करती फर्दर. पोलन ट्यूब स्टॉप्स ग्रोइंग. पोलन ट्यूब ग्रो करना स्टॉप कर देंदी है, और अगर पोलन ट्यूब ही ग्रो नहीं करेगी तो फिर वो पैनीट्रेट किद्दां करेगी स्टिग्मा वाया स्टिग्मा अप टू स्टाइल एंड दैन अप टू एम्ब्रियो सैक.
तो ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਇਨਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਟਿਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਸਨਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਨ ਅਦਰ ਕੇਸ if the plants are have unisexual flowers, having unisexual flowers। ਹੁਣ unisexual flowers ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ plant ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ either male flower ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਔਰ female flower ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ flower ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ then it will be called as the unisexual flower। ਔਰ ਅਗਰ unisexual flower ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ self pollination possible ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, right? And in other case there is the example of maize and castor। इन्ना plants ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, both male and female flower are present, both male and female flower ਇਸ ਇन्ना plants ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, but still ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, but prevent ਕਰਦੇ ਹੈ autogamy। autogamy ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। and what is autogamy? pollination, transfer of pollen grains towards the stigma of the same flower। autogamy ਨੂੰ prevent ਕਰਦੇ हैं but not geitonogamy। and what was the geitonogamy? transfer of pollen grains from the either on the other flower of either of the same plant or other plant, transfer of pollen grains to the stigma of either flower of the same plant, same not same flower, difference समझो। autogamy की सी कि transfer of pollen grains to the stigma of the same flower, ਇੱਕੋ ਹੀ plant ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ flower ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। but in geitonogamy there is the transfer of pollen grains towards the stigma of either the same plant, stigma ਜਿਹੜਾ same plant ਦਾ flower ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, not the same flower, flower ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ either to the different flower of the same plant or to the other plant, that is called geitonogamy। maize और castor ਦੇ ਵਿੱਚ autogamy is prevented but geitonogamy prevented ਨਹੀਂ ਹੈ। and next one is in many species of papaya। papaya ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, male and female ਜਿਹੜੇ flowers ਹੈ ਉਹ different plants ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, grow ਕਰਦੇ ਹੈ। there are unisexual flowers in case of papaya। most of the species of papaya male and female flower are on different plants, different plants ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। means either ਉਹ male plant ਹੋਏਗਾ either female plant ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ both case ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। autogamy ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ and geitonogamy ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ since flower ਹੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ either male ਹੈ either female ਹੈ, ਤਾਂ autogamy is quite obvious ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ possible and moreover geitonogamy ਵੀ ਨਹੀਂ possible। means cross pollination ਹੋਏਗੀ। we have read ਅਸੀਂ last class ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ geitonogamy is one of the kind of is quite similar to the cross pollination, but here autogamy and geitonogamy in most of the species of papaya are prevented। clear है जी? these are some outbreeding devices। devices means जो plants ने adapt ਕੀਤੀ ਹੈ, adaptability ਉਹਨਾਂ ਦੀ after so many time ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ so that they can come out from self pollination and move more towards the cross pollination। ਕਿਉਂਕਿ cross pollination ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, that's why they are also trying to promote cross pollination and rejecting the self pollination। now come to our next topic, that is pollen pistil interaction, which is in your textbook। pollen pistil interaction। देखो ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ
अप टू दिस टाइम पोलन ग्रेन्स किस तरह बने, मेल गैमिटोफाइट फीमेल गैमिटोफाइट किस तरह तक उन्हों की जर्नी रही, किस तरह उन्होंने पॉलीनेशन की, किहड़े किहड़े उन्हों दे विच हर्डल्स आए, सारी चीज़ां असी बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। बट स्टिल फर्टिलाइजेशन हैज़ नॉट हैपन्ड, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई जिथों तक असी जाना है। आर जर्नीज अप टू द सीड फॉर्मेशन, असी सीड फ्रूट सब फॉर्म करने हैं। दैट विल कवर आवर होल चैप्टर, साढ़े सारे चैप्टर नू कवर करेगा। तो नाउ कम टू आवर नैक्सट जर्नी कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन हुण किस तरह होएगी। देखो पोलन ग्रेन्स जिहड़े आ बहुत काइंड ऑफ मल्टीपल फ्लावर्स जिहड़े आ मल्टीपल प्लांट्स है साडे सराउंडिंग कवर हुंदे, असीं देखदे आ डे बाय डे। तो पोलन ग्रेन्स तो सब दे ही रिलीज़ हुंदे हैं, सब दे पोलन असीं गल कीती है कि पॉलीनेशन विंड पॉलीनेशन हुंदी है, इंसैक्ट पॉलिन सो मैनी काइंड ऑफ जिहड़े पोलन ग्रेन्स आ इंसैक्ट कैरी करके लेके जा रहे होंगे, सो मैनी काइंड ऑफ जिहड़े वाया विंड आ रहे होंगे, सम काइंड ऑफ जिहड़े हैगे वाया वाटर आ रहे होंगे। तो ये पोलन ग्रेन्स सारे दे सारे इंटरैक्ट नहीं करते। असी क्या गल कीती है कि लॉस हुंदा है, पोलन ग्रेन्स का लॉस हुंदा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जिहड़े पोलन ग्रेन्स हैं उन्होंने कंपैटिबल पोलन जिहड़ा सेम स्पीसी का पोलन ग्रेन ही जिहड़ा अपने सेम स्पीसी दे स्टिग्मा तो जाके अप्रोच करेगा और उत्थे जाके ही जर्मीनेट होएगा। लेट्स सपोज कि लोटस प्लांट है, सनफ्लावर प्लांट है, उन्होंने पोलन ग्रेन्स मूव किए वाया एनी एजेंट, इधर वाया बायोटिक और एबायोटिक एजेंट मूव किए, अप्रोच किए टुवर्ड्स द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। इफ देयर विल बी कंपैटिबिलिटी, अगर वो स्टिग्मा सेम फ्लावर काइंड ऑफ प्लांट का होएगा, ओनली दैन जिहड़े पोलन ग्रेन्स आ उहदे नाल उत्थे जर्मीनेट होणगे, उत्थे स्टैंड करनगे, अदरवाइज दे विल बी डीजनरेटेड, वो उत्थे ही लॉस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और उहदे विच की हुंदा है जदों जिहड़े पोलन ग्रेन्स हैं देयर आर सम कैमिकल्स like proteins और glycoproteins। प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स जिहड़े वो हेल्प करते हैं स्टिग्मा के उपर प्रेजेंट होंगे हैं, प्रेजेंट ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा ते प्रेजेंट होंगे हैं ये कैमिकल्स जिहड़े हैं इधर प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, वो वेट करते हैं दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। पोलन ग्रेन्स ये आ गए बहुत सारी तरह के, और ये पोलन ग्रेन्स सारे अपनी अपनी वेट कर रहे हैं कि स्टिग्मा नाल इत्थे स्टिग्मा के सरफेस ते पए हैं प्रोटीन्स जिहड़े इहदे नाल कंपैटिबिलिटी एंड पोलन ग्रेन्स ऑल्सो हैव सम कैमिकल्स, बोथ अपनी कंपैटिबिलिटी नू चैक करते हैं। रिएक्शनस होंदी हैं, केमिकल रिएक्शनस होंदी हैं, देयर हैपन सम केमिकल रिएक्शनस। अगर वो दोनों एक दूसरे नू सूट करते हैं ओनली दैन जिहड़ा वो पोलन ग्रेन है दैट विल इत्थे स्टैंड करेगा, बाकी दे जिहड़े रेस्ट ने पोलन ग्रेन्स वो डीजनरेट हो जाएंगे। क्लीयर है जी। पोलन ग्रेन कंडीशन हुई है कि पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा मस्ट बी ऑफ द सेम स्पीसी। सेम इदा कभी देखिया आपां कि फ्लावर होए गुलाब का और वो किसी भी अदर फ्लावर दे नाल जिहड़ी फिर तो मिक्स ब्रीडिंग हो जाएगी, मिक्स काइंड ऑफ फ्लावर्स हो जाएंगे। इक्को प्लांट के उपर सूरजमुखी भी उग रहा जी, उत्थे कमल का फुल भी उग रहा जी, ऐसा तो कभी नहीं आपां देखिया ना। एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्लावर पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लांट के उपर ही ग्रो करेगा। तो वो सब कुछ किद्दां होएगा अगर सीड सेम होणगे। तो सीड्स की कंपैटिबिलिटी नू चैक करने लई पोलन ग्रेन्स एज वैल एज स्टिग्मा दे कोल कुछ कैमिकल्स होंदे हैं जो आपस च पहले चैक करते हैं, उत्थे चैकिंग होंदी है। जदों एक दूसरे दे नू अप्रोच किते तो उत्थे चैक लगे हुए हैं, चैकिंग होंदी है। लाइक सेम जिस तरह आप एयरपोर्ट पर जाते तो पहले चैकिंग होंदी, साडी लगेज चैक होंदा, साडी अपनी सैल्फ चैकिंग होंदी है। इफ वी आर कंपैटिबल टू मूव टुवर्ड्स द एरोप्लेन ओनली दैन सानू अलाउ किया जाता कि वी कैन मूव फरदर। सेम काइंड ऑफ चैक इत्थे लगे हैं, वो वाया कैमिकल्स के थ्रू जर्नी करते हैं। तो अगर वो कंपैटिबल है दैन पोलन ग्रेन्स जिहड़े स्टिग्मा नाल दे उपर स्टे करनगे। हुण जिहड़े पोलन ग्रेन्स स्टे कर गए फिर की होएगा, सॉरी
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਸੀ ਉਹ ਲਾਏ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਨ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਸਟਿਗਮਾ, ਔਨ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਸਟਿਗਮਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। pollen grains get nourishment and water, get nourished and absorb water, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मूव करती है, पैनीट्रेट करती है टुवर्ड्स द स्टाइल, अल्टीमेटली उन्हें ओवरी ओव्यूल तक पहुँचना है। ठीक है, ये पोलन ट्यूब जी है इलोंगेट हो जाती है, इलोंगेट्स एंड पैनीट्रेट टुवर्ड्स द स्टाइल। क्लियर है जी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और नेक्स्ट टॉपिक ये थोड़ा जिहा नूं डिसकंटिन्यू करके तुहाडे टॉपिक दिता होया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की है एक्चुअली, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लीयर कि समटाइम्स जिहड़े साइंटिस्ट हैं या किसान हैं सानू कुछ स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ायरेबल स्पीसीज़ चाहिए होंदियां, डिज़ायरेबल स्पीसीज़ की रिक्वायरमेंट होंदी है। असी देखते हैं कि ये प्लांट है ज़्यादा इहदी यील्ड नहीं आ रही, इहदे तो ज़्यादा आउटपुट निकल के नहीं आ रही, इहदा जिहड़ा सीड है वो थोड़ा हुण ओल्ड एज हो गया है, मीन टू से उहदा जेनेटिक मटीरियल चेंज करने की ज़रूरत है। तो असी उहदे लई की करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इहदे च हैल्पफुल हुंदी है। आर्टिफिशियली असी उहनूं बीज नूं हाइब्रिडाइज कराते हैं। ये हैल्प की करते हैं, सम सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सीड्स, पोलन ग्रेन्स सॉरी, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स नूं कैरी किया जाता है और उन्होंने जर्मीनेट करवाया जाता है टू द स्पैशल टाइप ऑफ स्टिग्मा। मतलब स्टिग्मा भी साड़ी पसंद आ, पोलन ग्रेन्स भी साड़ी पसंद है, तो उन्होंने आपस दे विच जर्मीनेट करवाया जाता है। दिस काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियली। वी हैव डन आर्टिफिशियली दिस प्रोसेस, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हेयर इन दिस केस हुण आर्टिफिशियली असी हाइब्रिडाइज करवाना किद्दां, पोलन ग्रेन्स तो असी ले आंदे, स्टिग्मा तक अप्रोच भी करवाते, बट अगर स्टिग्मा नूं कोई होर पोलन ग्रेन किधरों ऑटोमैटिकली मिल ना जाए, सिंस एबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट्स आर ऑल्सो वर्किंग इन द एनवायरनमेंट ना, तो साडे प्रोसैस होने दे मीन वाइल ही अगर स्टिग्मा ने किसी होर पोलन ग्रेन नूं अट्रैक्ट कर लिया और उहदे नाल कंपैटेबल हो गया और फरदर प्रोसैस स्टार्ट हो गया, दैन साडी ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन दा प्रोसैस तो विच ही फ्लॉप हो जाएगा। तो फॉर दैट केस जिहड़ा स्टिग्मा है, फॉर दिस स्टिग्मा इज़ प्रोटैक्टेड, स्टिग्मा नूं प्रोटैक्ट किया जाता है। हुण असी चाहते नहीं कि कोई भी साडी मर्जी तो बिना कोई अदर पोलन ग्रेन स्टिग्मा नूं अप्रोच करे, सिंस वी आर ट्राइंग दिस प्रोसैस, क्योंकि असी किसी सुपीरियर क्वालिटी दे स्पीसी चाहिए है, सानू डिज़ायरेबल कोई सीड चाहिए, कोई क्रॉप चाहिए है, उस तरह का बीज चाहिए, उहदे लई असी स्टिग्मा नूं प्रोटैक्ट करना है। एंड स्टिग्मा इज़ प्रोटैक्टेड, क्यों प्रोटैक्ट किया, ताकि कोई होर पोलन ग्रेन उन्होंने अप्रोच ना कर सके बाय टू वेज। वन इज़ emasculation and the other is bagging. What is emasculation? In this case जिहड़े anthers हैं, anthers are cut just after the bud formation। जिद्दां ही बड फॉर्मेशन होई प्लांट दी, उसे टाइम जिहड़े एंथर्स हैं उन्होंने कट कर दिता जाता है, रिमूव कर लिया जाता उतों। एंड बैगिंग इन बोथ इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स, इन एमेस्कुलेटेड प्लस नॉन एमेस्कुलेटेड फ्लावर जिहड़े हैं उन्हां दे जिहड़े स्टिग्माज हैं, स्टिग्मा नूं कवर कर दिंदे हैं किहदे नाल, स्टिग्मा इज़ कवर्ड बाय
ਈਦਰ ਬਾय ਬਟਰ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਟਰ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਏ ਪੋਲੀਥੀਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟਿਗਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਗਮਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਧਰ ਬਾय ਬਟਰ ਪੇਪਰ ਔਰ ਬਾय ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਬੈਗਿੰਗ, ਐਂਡ ਬੈਗਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਸੋ ਦੈਟ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਂਥਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਐਂਥਰਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂਥਰ ਹੀ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਧਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋ ਦੈਟ pollen grains will not be able to approach them. Now next ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟਿਗਮਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਤਾ, now stigma is covered, stigma covered है वे ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਬਟਰ ਪੇਪਰ, ਬਟਰ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟਿਗਮਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟਿਗਮਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਥੋੜੀ ਰੋਕੀ ਅਸੀਂ, ਜਸਟ ਕਵਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟਿਗਮਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਇਆ, ਅਨਬੈਕ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨਬੈਕ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਨਬੈਕ? ਟੂ dust the desirable pollen grains, desired pollen grains or selected pollen grains, the main term is selected pollen grains। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ pollen grains ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਿਗਮਾ ਪੋਲੀਨੇਟ ਕਰੇ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ pollen grains ਦੀ ਡਸਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। पोलन ग्रेन्स डस्ट हो गए, पॉलिनेशन डन, एक्चुअल च पॉलीनेशन नहीं हुई, पॉलीनेशन तो वाया सम एजेंट्स होंदी है, तो असीं उहनूं आर्टिफिशियली खुद ही उहनूं प्रोवाइड करवाए हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन जिहड़े पोलन ग्रेन्स है दैट ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਿਗਮਾ ਤੇ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ, ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਐਂਟਰਸ ਥਰੂ ਸਟਿਗਮਾ, ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੂ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ। Now in both the cases ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, in both cases some chemicals ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ, some chemicals help, for example some enzymes or pectinase, this is also a kind of enzyme। ये chemicals help किस लिए करते हैं, to penetrate through stigma as well as through ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜੈਂਟ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਨ ਇਜ਼ ਪੈਕਟੀਨੇਜ਼, ਔਰ ਸੇਮ ਹੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਈਲ ਐਂਟਰਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਸਟਿਗਮਾ, ਜਦੋਂ ਸਟਿਗਮਾ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਹੈ ਕੈਨ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੈਨੀਟਰੇਟ ਐਂਡ ਮੂਵ ਟੁਵਾਰਡਸ ਦਾ ਓਵਰੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ,
Next what happens, now pollen tube comes to the ovary, ovary तक आ गई, and here it is nourished by some tissues, by some tissue called as obturator. एक टिशू है ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਇਹਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਓਵਰੀ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਸ਼ੂ ਨਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ obturator. नरिशमेंट भी होगी. नाउ ट्यूब एंटर्स इनटू ओव्यूल, ओव्यूल च चली गई बाय 3 वेज. 3 वेज नाल जिहड़ी ट्यूब है वो एंटर करेगी ओव्यूल दे विच. हुण नाउ रीकॉल करो ओव्यूल दी स्ट्रक्चर नूं. जदों असीं ओव्यूल वाली क्लास कीती सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਵਿਊਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਐਂਬਰੀਓ ਸੈਕ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 2 ਐਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਨ ਇਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਪਿਲਰ ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਵਨ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੈਲਜ਼ਲ ਐਂਡ. ਅਗਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਹੈ ਇਟ ਐਂਟਰਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਪਿਲਰ ਐਂਡ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਪਿਲਰ ਐਂਡ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਨੀਟਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਪੋਰੋਗੈਮੀ. एंड ये एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म्स. मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स दे विच फ्रॉम माइक्रोपिलर एंड तो ही जिहड़ी पोलन ट्यूब है पैनीट्रेट करेगी, एंटर करेगी इन द ओव्यूल. इफ इट एंटर्स फ्रॉम द शैलजल एंड, अगर ये शैलजल एंड तो मूव की है, एंटर की है, दैन इट विल बी कॉल्ड एज शैलजोगैमी. यदि एग्जाम्पल है जी कैसोरिना. थर्ड वन, अगर वाया इंटैगूमेंट्स, आप इंटैगूमेंट्स की भी गल की सी, अगर इंटैगूमेंट्स के थ्रू एंटर की है पोलन ट्यूब, दैन इट विल बी कॉल्ड एज मीजोगैमी. क्लीयर है. 3 वेज नाल पोलन ट्यूब ने एंटर करना है ओव्यूल दे. वन इज़ पोरोगैमी, सेकेंड इज़ शैलजोगैमी एंड द थर्ड वन इज़ मीजोगैमी. एंड मीजोगैमी की एग्जाम्पल असी लिखी नहीं, दैट इज़ कुकरबिटा. Its example is cucurbita. Okay. Now pollen tube enter होगी. What happens after that? Either किसी भी साइड तो एंटर होगी, पोलन ट्यूब एंटर होगी ओव्यूल दे अंदर. Now what happens next? Come to that point. ਹੁਣ देखो आप इत्थे स्ट्रक्चर रफ जी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने आ. कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं आप ओव्यूल दी एंब्रियो सैक. आप बोला सी कि इधरों मूव करदा एक एक पोलर न्यूक्लियाई बन जाते सेंटर दे विच. डेंस साइटोप्लाज्म पिया हुंदा है. वन इज़ माइक्रोपिलर एंड द अदर वन इज़ शैलजल एंड. इत्थे असी फिलीफॉर्म एपरेटस की गल कीती सी, आपां फरदर करते हैं. हुण पोलन ट्यूब तां एंटर कर गई, ओव्यूल दे विच चली गई. इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द माइक्रोपिलर एंड. माइक्रोपिलर एंड वाल नूं ही अट्रैक्ट होएगी मोस्ट ऑफ द टाइम. इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द माइक्रोपिलर एंड. उत्थे क्यों अट्रैक्ट होंदी है उधर, क्यों? क्योंकि उत्थे सिनर्जिड्स पए होंदे हैं. आपां सिनर्जिड्स दे बारे भी गल कर चुके हैं. सिनर्जिड्स की करते हैं, सम कैमिकल्स, सम अट्रैक्टिव कैमिकल्स नूं रिलीज़ करते हैं ताकि उहदे कोल ही आए, उसी साइड ते ही आए पोलन ट्यूब, उस वाल नूं मूव करे. हुण वो अगर लेट सपोज कि असी
बहुत अच्छी फ्रैगनेंस सानू कोई साडे कोलों नीयर बाय पास होया है तो असी ऑटोमैटिकली एक बारी मूव करके देखते हैं कि कौन पास होया साडे कोलों। तो इफ़ द जिहड़ी फ्रैगनेंस है दैट इज़ अट्रैक्टिव टू अस, तो सिनर्जिड का काम यही है कि वो अट्रैक्ट करते एक कैमिकल्स इदां दे रिलीज़ करते हैं कि सो दैट जिहड़ी पोलन ट्यूब आ रही है वो उन्हां दे माइक्रोपिलर एंड वाल नूं ही अट्रैक्ट होए। तो जिहड़ी पोलन ट्यूब है अट्रैक्ट होगी टुवार्ड्स द माइक्रोपिलर एंड पोलन ट्यूब स्ट्राइक कर दी है, उत्थे पए हैं जी सिनर्जिड्स, इन्हां ने कैमिकल्स रिलीज़ किए सी अपने वाल नूं अट्रैक्ट करते हैं करन दे लई, वन ऑफ द सिनर्जिड नूं स्ट्राइक कर दी है। हुण तुसीं याद करो कि ये जिहड़े जिथे सिनर्जिड्स पए सी उत्थे फिलीफॉर्म एपरेटस भी सी, फिलीफॉर्म एपरेटस भी सी। इहदा काम की सी फिलीफॉर्म एपरेटस दा, जदों पोलन ट्यूब पैनीट्रेट कीती एंटर कीती इन द एंब्रियो सैक, ये शॉक एब्जॉर्बर दा काम करदे हैं। शॉक एब्जॉर्बर फिलीफॉर्म एपरेटस दा काम है कि इन्हें शॉक नूं एब्जॉर्ब करना है जदों वो स्ट्राइक कीते सिनर्जिड नाल एंड पैनीट्रेट कीते टुवार्ड्स द इनसाइड द एंब्रियो सैक। हुण सिनर्जिड दा बस इन्ना ही रोल सी, आफ्टर दैट सिनर्जिड्स जिहड़े हैं दे गैट डिसअपीयर्ड और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। टिप जिहड़ी है पोलन ट्यूब दी, टिप ऑफ ट्यूब ब्रेक हो जाती है, अब एंटर ही होगी ओव्यूल दे अंदर एंब्रियो सैक दे अंदर। तो हुण ट्यूब दे कोल की सी वो याद करो, 2 मेल गैमीट्स सी, 1 and there was some cytoplasm। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ 2 ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖੋ ਕਿ 2 ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਪ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਤੇ 2 ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ फर्टिलाइजेशन, फाइनली फर्टिलाइजेशन हैपन्स, जो असी चाहते सी कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, हैपन्स। दिस अगेन हैपन्स बाय 2 वेज, 2 वेज नाल हुंदी है। ओके, नाउ कम टू द 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। किस तरह नाल फर्टिलाइजेशन हुंदी है देखो। नाउ यू कैन से कि एक सीड नू जनरेट होने लई, ये तो आपां गल कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेम काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन ह्यूमन बींग्स और some or other animals. The journey to come on this earth to get life is very tough. Our next chapter is sexual reproduction in animals too or human beings, I think so। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਮਚ ਟਫ ਦਿਸ ਜਰਨੀ ਇਜ਼। तो सानू जड़ा हैगा वी शुड नॉट टेक इट एज ईजीली कि लाइफ इतनी भी ईजी नहीं है। सानू जो मिली है इतनी आसानी नाल नहीं मिली, तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਤਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਹ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, क्योंकि लाइफ जस्ट बिकॉज लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्रैस है, टेंशनस है, तो ਅਸੀਂ फॉर दैट केस ਅਸੀਂ क्विट नहीं कर सकते। जर्नी है, लेट्स गो, ਉਹਨੂੰ इंजॉय करते हैं। ट्रबल्स आर देयर, टेंशनस आर देयर, स्ट्रैस इज़ देयर, बट साइड बाय साइड लाइफ इज़ ऑल्सो गोइंग। सो कीप मूविंग, कीप ट्राइंग। ठीक है, साड़ी एफर्ट्स, साड़ी जिहड़ी साडा सैल्फ कॉन्फिडेंस है वो किते भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी there will be challenges at every step of your life. This is the just beginning of your tough journey। जिहड़ी ये +2 क्लास है, इत्थों तुहाडी टफ लाइफ जिहड़ी है जस्ट स्टार्ट हुई है। द लाइफ इज़ सो अपार्ट फ्रॉम दिस साइड। तो इस करके असी इनू इदां ही नहीं लै लेना कि हाँ वी कांट, आई कांट। लेट्स कम टू आवर टॉपिक।
टू काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन, टू वेज हैं फर्टिलाइजेशन दे। वन इज जनरेटिव एंड द सेकेंड इज वेजिटेटिव। Generative fertilization is also called as syngamy. In this case, fusion of one gamete, two male gamete आए सी, एक gamete fuse कर गया with egg to produce diploid zygote. Diploid zygote, that is called as oosphere. In this case, this is also called as true fertilization. इसे नू ही true fertilization कहते हैं, where only one gamete fuses with the egg. In vegetative fertilization, fusion of second gamete, with two haploid nuclei and form triploid PEN, primary endosperm nucleus. Here it is called as triple fusion. Triple fusion होगी, एक तां दो जड़े हैप्लॉइड न्यूक्लियाई नाल मेल गैमेट फ्यूज़ कर गया एंड तीनों फ्यूज़ हो गए ना, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एंड वन जड़ा मेल गैमेट. दिस इज कॉल्ड एज द ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई, and also forms the PEN, that which means primary endosperm nucleus. Next is fertilization, 2 types दी clear होगी. Our next topic is double fertilization. Double fertilization. In this case, if both the male gametes fuses at the same time, fusion of 2 male gametes with 2 different structures, that is एक तो egg नाल fuse हो गया and other one polar nuclei नाल, and forms 2 different structures ये इन्होंने form कीतियां. केड़ियां केड़ियां? वन इज़ जाइगोट, एक ने एग नाल फ्यूजन करके जाइगोट च डिवेलप हो गया एंड द सेकेंड वन फ्यूज हो गया पोलर न्यूक्लियाई नाल टू फॉर्म द PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म cell. This happens only in angiosperms. Angiosperms ਦੇ ਵਿੱਚ डबल फर्टिलाइजेशन ही ਹੁੰਦੀ है. ਹੁਣ फायदे की है, सिग्निफिकेंस की है डबल फर्टिलाइजेशन ਦਾ, फटाफट डिस्कस कर लेंगे हैं and we will finish our today's class after that. सिग्निफिकेंस की है डबल फर्टिलाइजेशन ਦੀ. First one is increases viability of seeds. Seeds की viability increase होएगी, obvious गल है. Viability of seeds. Second one, double fertilization दे time ही it stimulates the plant to convert ओवरी इंटू फ्रूट. ਆਪਾਂ इनिशियल स्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ
कि ओवरी ने अल्टीमेटली किहदे च कन्वर्ट हो जाना फ्रूट दे विच एंड ओव्यूल ने किहदे च कन्वर्ट हो जाना इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड ओव्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड थर्ड वन इज एंडोस्पर्म डेवलप होएगा उहदा काम की है टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो एम्ब्रियो हुण जिहड़ा डेवलप हो गया फर्टिलाइजेशन तो बाद डेवलपमेंट जिहदी शुरू होगी उन्होंने नरिशमेंट भी तो चाहिए है ना दैट विल बी डन बाय दिस एंडोस्पर्म ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस डबल फर्टिलाइजेशन की वजह नाल ही एंडोस्पर्म स्टार्ट्स ग्रोइंग फास्ट ग्रो करन लग जाता है बिकॉज उन्हें एम्ब्रियो नू डेवलपमेंट हैल्प करनी है और ये इंश्योर करता है कि आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन कि जिहड़ी एंडोस्पर्म है जिहड़े न्यूट्रिटिव टिश्यूज़ हैं ये उदों ही ग्रो करन जदों जिहड़ा एम्ब्रियो है फॉर्म हो चुका है जदों ऊस्फीयर बन गया वन मेल गैमीट जिहड़ा एग नाल फ्यूजन होके फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है ओनली दैन जिहड़ी नरिशमेंट आ वो रिक्वायर्ड है तो ये एनश्योर करता है कि उस टाइम ही न्यूट्रिटिव टिश्यू जिहड़े डेवलप होण ना तो उस तो पहला ना उस तो बाद लेट नहीं हो सकते यही रीज़न है कि जिहड़े एंजियोस्पर्म्स हैं दैट आर मोर एडवांस एंजियोस्पर्म्स आर मोर एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड than gymnosperms because इन्हां दे विच डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है okay our next topic is difference between the fertilization and double fertilization and what happens after the fertilization हुण fertilization होगी उस तो बाद की होएगा that is also a very important topic which will be discussed in our next class till then मेरे चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਐਂਡ ਟਿਲ ਦੈਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ और वो जी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करांगे टिल दैन टेक केयर एंड बी हैप्पी बाय बाय।